Hello students, welcome to my channel Sidhu's Classes. If you like my videos, don't forget to like, comment and share. Follow me on Instagram and you can also WhatsApp me on my personal contact for any query. Hello students, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲ A and B are acute angles such that cos A equal to cos B. Show that angle A equal to angle B. ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ A equal to angle B ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ cos A equal to cos B. ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ A and B are acute angles ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਓਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ acute ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ CD ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ AB ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ cos A cos B ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ A ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ B ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ B ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ cos A ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos B ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ cos A ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ADC ਐਂਡ BDC ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ D ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਕੀ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ADC ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਈ BDC ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਪੰਡਿਤ ਬਦਰੀ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले ठीक है ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ cos ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ cos ਆ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos A equal to cos B ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ cos ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ cos ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ cos ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B upon H ਤਾਂ B upon H ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ base upon हाइपोटेन्यूज लवांगे ठीक है ना तो हाइपोटेन्यूज भी तो अपन लवांगे तो अपने को देखो ADC ट्रायंगल दे विच देखो है ना ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC दोनों दे विच ADC एंड BDC cos ADC ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ B upon H ਕਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ AD ਓਕੇ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ AC AD upon AC ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ cos ਥੀਟਾ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ BDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ BD ਤੇ हाइपोटेन्यूज किहड़ा बन गया BC तो अपने को इक्वल टू क्या आ गया BD अपॉन BC ओके तो आप की करांगे हुण इथों इस तो आप बाद की करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई जो आप करांगे देखो AC ऊपर चला जाऊगा BD नीचे आ जाऊगा अपने को ठीक है तो अपने को की बन गया AD अपॉन BD इक्वल टू AC upon BC ओके इथों तक अपन समझ आ गया हुण अपने को की बन गया AD upon BD इक्वल टू AC upon BC तो आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਲੈਟ AD upon BD इक्वल टू AC upon BC इक्वल टू ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ K ਰੱਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ K ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ AD upon BD इक्वल टू AC upon BC आ दोनों आप अलग तो K के बराबर है इनू अलग तो K के बराबर रख लिया आप ठीक है उस तो बाद की करांगे आप K के बराबर रख के इनू आप कल्ले कल्ले इक्वल टू कर लांगे देखो इथों देखो इनू पहला करांगे आप ये K के बराबर तो अपने को क्या आ गया AD इक्वल टू जो BD उधर जाऊगा तो की बन गया अपने को K BD वो ठीक है इनू एक नंबर दे दो आप ठीक है इक्वेशन बन गई एक नंबर की ठीक है उस तो बाद नेक्स्ट अपने को AC upon BC ਨੂੰ K ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ AC ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ K BC ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ AD ਇਕੁਅਲ ਟੂ KBD
AC इक्वल टू KBC। जो आप ये इक्वल किया AC अपॉन BC ਨੂੰ ਤਾਂ BC इधर मल्टीप्लाई हो गया कि KBC बन गया। ओके, तो 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 1 तक अपनी बन गई है ना। हुण अपने को देखो ध्यान नाल ट्रायंगल ADC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है D ते, ठीक है। BDC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है किहड़ी ते D ते। ओके, तो आप इन्हां दोनों ट्रायंगल्स के उत्ते की पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे, ठीक है। आप इत्थे करते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ऑन ADC है इन ट्रायंगल। वही आप देखते हैं इसे लिखने की लोड़ नहीं आप दोबारा था ADC ਤੇ BDC ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ट्रायंगल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो आ बेस है आ परपेंडिकुलर आ हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप इथों की निकले अपने को देखो ध्यान नाल जी आप इथों AC AD ते BC AD DC एंड AC अपने को सारी तीनों चीज़ें आ गई ने। आप इथों की किया है AC स्क्वायर अपने को की बन गया AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट ट्रायंगल अपने को ADC दे विच आ गया अपने को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने तो बाद। हुण आपां की करांगे इस तो बाद इत्थे इहदे चों आपां CD की वैल्यू कढ लांगे। इत्थों देखो तो CD स्क्वायर इक्वल टू की रह गया अपने कोले AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। तो CD स्क्वायर की वैल्यू की आ गई अपने कोले AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इन्हों आप लेने 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है। उस तो बाद सेम एज आप करना गा आप इत्थे करनी है इथों भी आप ट्रायंगल किहड़ी लेनी है BDC। ये भी अपने को राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कहते जिन्हों ना पंजाबी च। तो BDC दे विच आप देखो ध्यान नाल जे हुण आप इथों भी CD की वैल्यू कढीए तो CD की अपने को परपेंडिकुलर मान सकते हैं लंब ते अपने को आधार बन गया BD बेस ते कारण किहड़ा बन गया BC जिहड़ा हाइपोटेन्यूज आप, ठीक है ना। तो आप इथों भी जे CD की वैल्यू कढीए तो अपने को की बनती है CD स्क्वायर इक्वल टू की बनूगी अपने को कारण किहड़ा होना अपने को हाइपोटेन्यूज BC है ना। तो BC स्क्वायर माइनस की हो जाएगा BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये नंबर बन गया अपने को 4 इक्वेशन, ठीक है। हुण देखो ध्यान नाल 3 ते 4 देखो तुसीं ध्यान नाल भी अपने को CD स्क्वायर बन गया दोनों साइड ते 3 ते 4 के बीच है ना। तो अपने को क्या CD स्क्वायर इक्वल हो गया। तो आप लिख सकते हैं भी दिस इज इक्वल टू दिस। आप इथों लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4 3 ते 4 तो 3 ते 4 तो अपने को की सेट होता देखो ध्यान नाल भी अपने को आ चीज़ आ सारी AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ये इक्वल आ रहा है क्योंकि CD स्क्वायर अपने को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब खब्बा पासा जो खब्बे पासे के बराबर है तो सज्जा पासा सज्जे पासे के बराबर है ना। तो आप इनू लिख देंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, इतने तक समझ आ गया भी आप इस चीज़ को ये बराबर लिखता है, ठीक है। हम देखो ध्यान नाल ये देखो ध्यान भी अपने को AC की वैल्यू की पई है अपने को KBC पई है AD की वैल्यू की पई है KBD पई है ना। आप ये इक्वेशन 1 एंड 2 तो आप की करिया ये वैल्यूज लईयां AD इथों AD की वैल्यू आ पई अपने को देखो KBD AC की वैल्यू की अपने को KBC। तो आप इथों वैल्यूज चकते हैं, ठीक है। तो आप AC की थां ते की भरांगे इत्थे KBC। तो आप की कीता ठीक है। तो आप की कीता इथों AC की थां ते की भरिया KBC KBC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर की थां ते हुण AD की वैल्यू कितनी अपने को KBD तो माइनस KBD स्क्वायर इक्वल टू कितने BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
ओके रिपोर्ट इतने तक समझ आ गया। हम आप करना जस्ट इतों के इतने भी के स्केयर है, देखो ये भी के स्केयर है, आप कर के स्केयर कॉमन कर लिया, ठीक है। अंदर की रह गया अपने को बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर इक्वल टू बी सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। हम देखो आ चीज़ तो ये कट्टी गई सारी की सारी, ठीक है। इधर इतने की रह गया 1 रह गया, तो अपने को की रह गया के स्केयर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपने को के इक्वल टू की हो गया अंडर रूट 1, तो 1 का की अपने को अंडर रूट की होंगे 1 ही होता, पर प्लस माइनस की ला लो तो भी 1 ही आऊगा अपने को ना, तो 1 आ गया। तो के इक्वल टू की वैल्यू आ गई अपने को 1 वैल्यू आ गई। हुण अपने को की करना आप के की वैल्यू जी अपने को 1 आई है, देखो ध्यान के इक्वल टू 1 आप ये भरीए इतने 1 भरीए के की वैल्यू, ठीक है ना। ए सी इक्वल टू 1 बी सी, 1 बी सी मतलब बी सी मतलब ए सी इक्वल टू बी सी आ गया अपने को। देखो ना जो अपने को आ चीज आ गई ए सी इक्वल टू बी सी मतलब ए सी इक्वल टू बी सी ट्रायंगल के विच देखो ध्यान भी ए सी इक्वल टू बी सी वैल्यू आ गई जो अपने को है ना। तो उस तो बाद अपने को की आया आप लिख सकते हैं भी ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी बी इक्वल टू बी सी लिखता है आप, उस तो बाद लिख सकते हैं आप एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एक क्यों लिख सकते हैं आप, देखो ट्रायंगल के विच देखो जिहड़ा एंगल ए आ, एंगल ए दे सामने की बन रही है साइड बी सी बन रही है, तो बी एंगल है ये सामने की बन रही है ए सी बन रही है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं भी एंगल्स आर मेड बाय ऑपोजिट साइड्स, इक्वल ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब कि अपने को जो एंगल है जो इक्वल साइड्स होन ऑपोजिट साइड्स है इक्वल होन तो आप एंगल भी वो बराबर लिख सकते हैं इतने, ठीक है ना। इतने लिख भी जो तुम भावे एंगल्स आर मेड बाय opposite equal sides in a triangle are equal, ठीक है। मतलब एंगल्स आर मेड बाय ऑपोजिट्स इक्वल साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट साइड्स बराबर होंदियां जिहड़ियां साइडां ऑपोजिट साइड मतलब एक दूजे दे उल्ट साइड होंदी जिहड़ी वो बराबर होण ते उहनां दे जिहड़े बनाए गए उहनां दे सामने एंगल होंदे जिहड़े वो इक्वल होंदे एक दूजे दे, ठीक है। जिवें हुण ए एंगल की द्वारा बनाया जाता बी सी द्वारा, ते बी एंगल की द्वारा बनाया जाता ए सी द्वारा, तो ए सी इक्वल टू बी सी हो गई अपने को, तो एंगल ए ते इक्वल एंगल टू बी भी तो इक्वल हो गया ना फिर इस तरह, ठीक है। ये अपना की है आंसर आ गया, ठीक है। हम आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स हम आप करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के विच देखो अपन की गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8 मतलब 7/8, cot थीटा की वैल्यू दी हुई है अपन 7/8, तो आप फाइंड आउट की करना है 1 + sin थीटा into 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, एंड ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड अपन की फाइंड आउट करना cot स्क्वायर थीटा, तो आप फर्स्टली हम देखो ध्यान नाल आपको sin थीटा ते cos थीटा की वैल्यू चाहिए इथों ना, फिर ही आप मतलब की है ये वैल्यूज होती भर सकते हैं। तो फर्स्टली अपन की दिता होया cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिता होया है ना। हुण आप की करांगे जस्ट हम ट्रायंगल बनावांगे पहला। फर्स्टली अपने को ट्रायंगल जी होंगी है देखो राइट एंगल ट्रायंगल जिहदे विच की अपने को आ बेस है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है ना। तो आप की करांगे भी आप देखो cot थीटा 7/8 दिता होया, अपन फार्मूला अपन पता ही है देखो, ठीक है ना भी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोली, तो cot की उल्ट होंदा तुहानूं पता ही है tan अपने को यार की बनेगा tan की होंदा p/b, तो cot की होंदा अपने को फिर cot थीटा इक्वल टू की होगा b/p, मतलब बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, अपने को कॉट थीटे की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपने को देखो बेस किहड़ा आप मन्निया होया, आप थीटा इहनूं मन्निया होया है, ठीक है। तो फिर अपने को बेस किहड़ा हो गया ये, आ अपने को परपेंडिकुलर, तो ये अपने को हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। इहनूं नाम देना तो दे दो भावें ए बी एंड सी। तो अपने को थीटा आप किहनूं मन्निया होया, ए नूं मन्निया होया, तो अपने को बेस किहड़ा होगा ए वाला बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेन्यूज अपना यही होगा, ठीक है ना। तो अपन पता ही है, ओके। तो हम कॉट थीटा कितना 7/8 है 7/8। तो कॉट थीटा इक्वल टू b/p होता है। b मतलब बेस कितना दिता होया, फिर अपन देखो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 7/8 इक्वल टू की होता है अपने को b/p, मतलब बेस कितना हो गया 7 तो p कितना हो गया 8। तो अपने को बेस कितना आ गया 7 तो p परपेंडिकुलर 8 आ गया। तो हम की आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अपन कढ़नी पैनी है, बिकॉज क्यों कढ़नी पैनी है, क्योंकि जो आप साइन थीटा कढ़ांगे तो साइन दे विच की हुंदा p/h हुंदा, ते कॉस कढ़ांगे जो आप कॉस दे विच की हुंदा b/h हुंदा। तो हम h की वैल्यू अपन पता होनी चाहिए है, जे h की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप भरांगे भी कित्थों इत्थों ना, क्योंकि तो अपने को साइन ते कॉस बनना ही नहींगा अपने को h की वैल्यू बिना। तो हम की करांगे अपन साइन की वैल्यू कढ़ांगे इत्थों, साइन सॉरी h की वैल्यू कढ़ांगे पहला अपन। h किवें कढ़ांगे हुण देखो अपने को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे अपन, जस्ट अपने को इत्थे राइट एंगल है आप पाइथागोरस लावांगे, मतलब h² इक्वल टू b² प्लस p², ठीक है। b एंड p अपन गिवन है, देखो दिते हुए है h² इक्वल टू b कितना दिता होया 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, h² इक्वल टू कितना आ गया देखो 7 × 7 7 7 49 होंगे, 7 × 7 49 प्लस 8 × 8 64 8 8 64 होंगे, ठीक है। ओके समझ आ रही है। तो उस तो बाद की अपने को देखो h इक्वल टू 49 प्लस 64 कितने हो गए 9 4 13 ते 6 4 10 ते 1 11 113 बन गए। तो h² सीगा जिहड़ा अपने को देखो इत्थों ध्यान नाल वो की बन गया इधर आके अंडर रूट बन गया, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोले अंडर रूट 113, मतलब अंडर रूट 113 वर्गमूल 113 बन गई h की वैल्यू अपने कोले। तो जो अपने को h की वैल्यू बन गई अंडर रूट 113। तो हम देखो ध्यान नाल आपां फर्स्टली आपां आ करना सीगा इत्थे ना, देखो भी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये विच देखो अपने को साइन ते कॉस, ठीक है। साइन की हुंदा p/h, कॉस की हुंदा b/h। तो आपां की करांगे जस्ट इत्थों आपां वैल्यू कढ लो, पहला साइन थीटे की वैल्यू कढ लो। देखो साइन थीटा इक्वल टू की आ गया अपने कोले p/h, p कितना परपेंडिकुलर 8 ते h कितना अंडर रूट 113। तो अपने को कितना आ गया 8 बटा अंडर रूट 113 आ गया, ओके। आउटपुट हुण अपने को की है कॉस, कॉस की वैल्यू कढनी है b/h, b कितना 7 है, h कितना 113 अंडर रूट 113 है, ठीक है। तो अपने को की कढिया आप b cos थीटा इक्वल टू 7 बाय अंडर रूट 113, ओके। तो हम देखो ध्यान अपने को इत्थे तक वैल्यू आ गई है ना। तो आप की करांगे हुण इस वैल्यू sin थीटा ते cos थीटा की वैल्यू अपने को आ चुकी है, आप की करांगे जस्ट इनू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा मतलब 1 + 8/√113। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 + 8/√113। अच्छा चलो एक ਆਪਾਂ ना थोड़ा जा इदू भी सौखा करते हैं आप काम, ठीक है ना, थोड़ा जा इदू ईजी लेके चलते हैं आप भी। देखो ध्यान नाल तुसीं एक गल देखो अपने को 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बन रहा है ना, आप उदू भी थोड़ा ईजी कर लेंगे काम। इतों आप वैल्यू भर के अगे करांगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सॉल्व करांगे तो आप इत्थे सॉल्व कर लेंगे। देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा एक ही बन रहा अपने को, फार्मूला नहीं बन रहा है एक अपने को भी a + b a - b है ना, इतने थले a + b a - b, ये फार्मूला की होंगे अपने को। देखो a + b a - b इक्वल टू की होंगे अपने को
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जो आप देखिए ध्यान नाल तो इत्थे की बन रहा अपने को ए कितनी बन रही है 1 बन रहा है तो बी कितना बन रहा है sin थीटा बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं ना 1 स्क्वायर माइनस sin थीटा दा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा दा स्क्वायर। समझ आ रही है ना गल तुम, ठीक है। इदा पर आप हम ये की करेंगे आप जस्ट इतने आप लिखो 1 का स्क्वायर 1 ही होंगे sin थीटे की वैल्यू भर देंगे आप 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin थीटा कितना अपने को 8 बटा अंडर रूट 113। तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है 7 बटा 113 अंडर रूट 113 7 बटा अंडर रूट 113 दा स्क्वायर। ओके इतने तक समझ आ गई ना। देखो इजी हो गया अपने ना फार्मूला भरने नाल बिल्कुल इजी हो गया अपना काम। कितने आप पहले इनू सॉल्व करते एलसीएम लेके फिर इनू सॉल्व करते फिर अगे अगे चलते कितना अपने कैलकुलेशन लेंथी हो जानी सी। तो इनू थोड़ा जिहा इजी करने की कोशिश करिया करो। 1 अच्छा देखो ध्यान 1 का 1 ही आ गया माइनस 8 का स्क्वायर किया 64 बाय अंडर रूट 113 का आप स्क्वायर करांगे तो अंडर रूट के नाल स्क्वायर कट्टिया जाऊगा की रह जाऊगा अपने को 113 अपॉन 1 माइनस 7 का 7 का स्क्वायर किया 49 बाय 113। देखो इतने तक अपना बिल्कुल आ गया इजी हो गया काम अपना, ठीक है ना। हम आप करेंगे इतने एलसीएम ले लेंगे ये बाय 1 ला लो ये बाय भी 1 ला लो। तो आप की करेंगे इतने जस्ट इजी स्टेप रह गए। हम अपने देखो इहदा की अपने को एलसीएम आया, ठीक है ना। जस्ट इनू की आप सॉल्व करांगे 113 अपने को आ गया एलसीएम आ गया तो इतने करांगे इनू 113 ने 1 से डिवाइड किया 113 ही आ गया तो मल्टीप्लाई किया 1 नाल तो कितना आ गया 113 माइनस इतने 64 ही आ जाऊगा अपने को, ठीक है। एलसीएम लेके डिवाइड बाय इनू करांगे सॉल्व। हम आप देखो एलसीएम कितना आ गया 113 तो उदा ही 113 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा ही 113 माइनस 49, ठीक है। इतना समझ आ गई। हम इस तो बाद की करना आप जस्ट 113 चो 64 माइनस कितने कितने हो गए 49 हो गए। देखो 113 चो 64 माइनस कितने कितने आ गए 49 बाय 113 अपॉन 113 चो हम 113 चो आप 49 49 माइनस कितने कितने आ गए अपने को 64 ही बन जाते हैं, ठीक है। 64 बटा 113 ओके। तो हम देखो ध्यान नाल अपने को जे या तो इत्थे कट दो भावें जां इहनूं चलो उल्टा कर दो। देखो 49 बटा 113 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया 113 बटा 64। जो ऊपर 64 बटा 113 है ऊपर जाऊगा ना तो 113 बटा 64 बन जाऊगा 113 नाल 113 कट्टिया गया इक्वल टू कितना अपने को आंसर आ गया 49 बटा 64 अपने को आंसर आ गया, ठीक है। ये अपने को की वैल्यू आ गई अपने को 49 बटा 64 ये आ गया अपने को 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। यदि अपने को वैल्यू आ गई फर्स्ट दी, ठीक है। हम आप करना जस्ट हम आप करते हैं सेकंड की अपने को देखो cot स्क्वायर थीटा अपन देखो देखते हैं नाल भी cot स्क्वायर थीटा इन्हों आप की लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। तो अपने को देखो cot थीटा की वैल्यू अपन दी हुई है 7/8 है ना। तो 7/8 अपन दी हुई है तो आप की लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का की करेंगे अपना जस्ट स्क्वायर करना आप, ठीक है। तो अपने को 7 का स्क्वायर किया कितना आ गया 49 बाय 8 का स्क्वायर किया अपने को कितना आ गया 8 इंटू 8 64। तो ये अपने को दूसरा है अपने को आंसर है आ चुका है दूसरे का इतने अपना क्या सम सॉल्व होता है। ओके दैट्स ऑल।